My name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So, in today's lecture, we are talking about the characteristics of transducer, the subject of electrical measurement and instrumentation. In previous lecture, what we are talking about, that is your बेसिकली हम क्या बात कर रहे थे प्रीवियस में, हम सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे थे, दैट व्हाट आर द फैक्टर विच आर अफेक्ट द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 क्राइटेरिया पढ़ लिया था जो कि हमारे ट्रांसड्यूसर के डिज़ाइनिंग पार्ट में अफेक्ट करते हैं, दैट व्हाट आर द पैरामीटर्स विच विल बी कंसिडर्ड, which will always consider in mind while designing any transducer. So, first one if we are talking about the selection criteria of transducer, that is your operating principle. Means in this operating principle we have to always know that what type of physical quantity we are taking as an input, and whatever our output will be obtained, that is the type of resistive, inductive or capacitive. So, these operation of principle will be always considered in the mind while designing the transducer. So, first factor which affect the selection criteria of transducer, that is your operating principle, which will be described in previous lecture. Second one is your sensitivity. Sensitivity means if we design any transducer, that transducer will be sensitive, means the input whatever input we are providing to the its input signal, then after signal processing whatever output हमारा output हमें मिल रहा है, that is your sensitivity. Means our transducer should be sensitive towards the input signals, means whatever signals we are providing to its input side, its corresponding has been correspondent reflected into the output side. Okay, so its sensitivity should be high. This factor we should also consider. Third is your operating range. Operating range means the transducer will we have to decide a certain range in which our transducer will perform the operation, means it will not break down after its certain limit has been fixed, and after that above limit our transducer will be getting this breakdown and some fault will be there. So, our limit operation of limit will be also precise. And fourth one is accuracy. Accuracy is a very important part, means our transducer we will design transducer in such a manner that our transducer will be more accurate. Okay. So, these are the previous 4 criterias in which we are talking about the previous lecture. So, in this lecture we are talking some more methods or some more criterias in which we have to work for designing a transducer, that is your error. Okay. तो error क्या है? The error inherent in the operation of the transducer itself, but it should maintain the expected input output relationship as described with its transfer function so as to avoid errors. मीन्स हमें जब हम किसी ट्रांसड्यूसर की डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एरर शुड बी जितना कम हो सकता है उतना अच्छा होता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट द होल एरर. सो उस एरर को कम करने के लिए हमें उस ट्रांसड्यूसर की डिज़ाइन इस वे में करेंगे दैट द एरर जो इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप है आपका वो मेंटेन रहे. ठीक है, विथ इट ट्रांसफ़र फंक्शन. ठीक है, तो जब आपका इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र फंक्शन, तो आपका जो एरर के चांसेस होंगे वो हमारा कम मिलेगा. ठीक है, एरर होता क्या है एक्चुअली, जो हम आउटपुट हमें एक्सपेक्टेड होता है उससे हमारा आउटपुट डेविएट मिलता है, तो जितना डेविएशन होता है दैट इज़ नोन एज योर एरर. तो हम उस डेविएशन को मिनिमाइज करने के लिए वॉट एवर द प्रोसेस वी आर ऑब्टेनिंग that is necessary. Sixth is your transient and
frequency response. Basically two types of specification is there. First is transient specification and second is frequency response specification. In transient specification there are several factors, for example delay time, peak settling time, peak overshoot time. These things we will always consider while designing a transducer. Okay, and its frequency response should be always a flat type of response curve is there. So the transducer should meet the desired time domain specifications. मैंने कौन कौन से स्पेसिफिकेशन, आपका डिले टाइम हो सकता है, सेटलिंग टाइम हो सकता है, पीक ओवरशूट टाइम हो सकता है. तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हमें ट्रांसड्यूसर की डिज़ाइनिंग करनी है. एज वेल एज इट शुड आइडियली हैव ए फ्लैट फ्रीक्वेंसी response curve. So next factor which will affect the selection criteria of transducer, that is your loading effect. So always make sure that in transducer there will be no loading effect in the transducers. ठीक है, तो इस transducer के loading effect को avoid करने के लिए, to avoid loading effect it is necessary that a transducer has high input impedance and low आउटपुट इम्पीडेंस. ठीक है, हम लोडिंग इफेक्ट को नेग्लेजिबल कब कर सकते हैं, जब इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होगा, ओके, और आपका आउटपुट इम्पीडेंस जो होगा वो लो होगा, तब हम लोडिंग के इफेक्ट को नेग्लेजिबल कर सकते हैं. ठीक है, तो लोडिंग इफेक्ट हमें ट्रांसड्यूसर में क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे आउटपुट सिग्नल में इनपुट में अगर लोडिंग इफेक्ट है तो ये हमारा जो मेजरिंग क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स और ये सब चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिल पाएगा हमें. ठीक है, तो उस इफेक्ट को नेग्लेजिबल करने के लिए हमारा जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो हमेशा ट्रांसड्यूसर का हाई रखना होगा और आउटपुट इम्पीडेंस शुड बी लो. नेक्स्ट एंड लास्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया इज दैट इज़ योर फिजिकल इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट किसी भी हम ट्रांसड्यूसर की डिज़ाइनिंग करते हैं तो उस समय हमें इन्वायरमेंट को कंसिडर में रखना होगा, दैट इफ़ वी अप्लाई सम सर्टन force or temperature or pressure, if anything is there in certain condition, तो हमारा ट्रांसड्यूसर वो वर्क करना चाहिए और एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिलना चाहिए. तो दिस फैक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कोरोजन, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे ट्रांसड्यूसर को अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इनको भी हम कंसीडर करके चलेंगे जब हम ट्रांसड्यूसर की डिज़ाइनिंग करेंगे. तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स which are taking into mind while designing the transducers. The transducer selected should be able to work under specified environmental conditions. ठीक है, हम ऐसे ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन करेंगे जो स्पेसिफाइड environmental condition में भी वर्क करें. ठीक है, under certain pressure, under certain temperature, or if corrosion is there then it will be work in that condition also. Okay, ऐसा नहीं हो कि हम इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करें तो फिर अगर ये फैक्टर्स राइज होते हैं तो उसके बाद हमारा ट्रांसड्यूसर काम करना बंद कर दे. ओके, एंड मेंटेन इट्स इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप. ठीक है, तो ये हमारा दीज आर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ए ट्रांसड्यूसर. तो हमने ये चीज़ें कवर करी. ठीक है, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द ट्रांसड्यूसर. तो हमने क्या क्या देखा आपका, फर्स्ट वन इज़ योर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, सेकेंड वन इज़ योर सेंसिटिविटी, थर्ड इज़ योर ऑपरेटिंग रेंज, एंड फोर्थ इज़ योर accuracy. The transducer should be more accurate and precise. Next is your error, and further transient and frequency response. Next loading effect नहीं होना चाहिए ट्रांसड्यूसर में. ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, because it will affect the output of the transducer. Okay, so to minimize the loading effect, what we should do, we should do that the input impedance should be high and its output impedance should be low. Last one is your physical environment, means
हमारा जो ट्रांसड्यूसर जो हमने डिज़ाइन किया है दैट विल एबल टू ऑपरेट इन ए स्पेसिफाइड इन्वायरमेंटल कंडीशन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर. सो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर की बात करेंगे तो ये क्या होता है बेसिकली. दिस इज द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया of the transducer that are based upon certain set of characteristics that gives a meaningful description of quality of measurement. Okay, तो हमारा जो किसी भी ट्रांसड्यूसर की परफॉर्मेंस हम किस तरीके से चेक करेंगे ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर में पढ़ेंगे. ठीक है, कि दैट इफ़ वी वांट टू चेक द परफॉर्मेंस दैट व्हाट वी आर डिज़ाइनिंग द ट्रांसड्यूसर दैट इज़ मोर प्रिसाइज और नॉट, द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ओके और नॉट. तो दीज आर द सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव टू रीड. ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर: इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो भी इनपुट सिग्नल हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस किस पे डिपेंड करता है. बेसिकली जैसे ट्रांसड्यूसर क्या होता है, measuring device, this is your input signal and this is your output. तो बेसिकली इसमें ट्रांसड्यूसर क्या करता है, हमारा इनपुट क्वांटिटी को हमारे आउटपुट क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग. ओके, सिग्नल प्रोसेसिंग और सिग्नल कंडीशनिंग. इसमें क्या होता है आपका, हमारा सिग्नल जो होगा मॉड्यूलेट हो सकता है, एम्पलीफाई हो सकता है, एटून्यूएट हो सकता है. तो these are the modifications which is done in the part of signal conditioning unit. Further after doing the signal conditioning final our response और output आपको मिल जाता है. ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल ट्रांसड्यूसर है. ठीक है, ये हमने डिज़ाइन कर लिया. डिज़ाइन करने के बाद हमने इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ लिया. ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें माइंड में रखना चाहिए while designing a transducer. After this we also have to read that part is your characteristics of transducers. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली होती है ट्रांसड्यूसर की और वो फॉलो हो रही हैं या नहीं. ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है. पहला आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या होता है बेसिकली, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका टाइप एंड ऑपरेटिंग रेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी. ओके, तो हम क्या होता है बेसिकली, द फर्स्ट कंसिडरेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए ट्रांसड्यूसर इज द इनपुट क्वांटिटी विच इज़ टू बी मेजर्ड एंड इट्स रेंज ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, हमारा बेसिकली हम जो पहला इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो किस पे डिपेंड करेगी, इसके टाइप और ऑपरेशन रेंज पे चेंज करेगी, ऑपरेशन रेंज पे काम करेगी. ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप का है और उसकी क्या रेंज है, मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज हमारी क्या है. ठीक है, तो the type of input quantity is generally known in advance. Whatever physical quantity we are providing to the transducer that is already known. Okay, next the useful operating range of a transducer is an important factor in the choice of transducer for a particular application. Basically हमें ऑपरेशन ऑफ रेंज पता होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, कि जैसे हमें फॉर एग्जांपल कोई भी फोर्स को मेज़र करना है तो उसकी हमें रेंज पता होनी चाहिए कि दैट मिनिमम फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ तक हमारा ट्रांसड्यूसर रिस्पॉन्ड करेगा और मैक्सिमम इसकी एक्सटेंट कितनी वैल्यू तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो दैट ऑपरेशन रेंज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इनपुट क्वांटिटी, इट शुड बी नोन.
Okay, so first first characteristics, first input characteristics, that is your type. Type means basically whatever input we are provided to the transducer, that should be known, and its operating range of input quantity should be known. सेकेंड आपका हो गया लोडिंग इफेक्ट. ठीक है, आपका ये इनपुट करेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली, ठीक है, पहला आपका टाइप देख लिया, टाइप एंड ऑपरेशन रेंज. ओके, सेकेंड आपका हो जाएगा लोडिंग इफेक्ट. लोडिंग इफेक्ट मैंने बेसिकली डिस्कस किया था जब सिलेक्शन क्राइटेरिया हम की बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसड्यूसर की, तब हमने बात किया था लोडिंग इफेक्ट की. लोडिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे ट्रांसड्यूसर में लोडिंग इफेक्ट है तो आवर आउटपुट विल डेफिनेटली अफेक्ट टू दैट लोडिंग इफेक्ट. अगर लोडिंग है तो हमारा आउटपुट अफेक्ट होगा, विच इज़ नॉट नीडेड एक्चुअली. ठीक है, अगर आउटपुट अफेक्ट होगा तो इट मीन्स एरर विल बी जनरेटेड टू द ट्रांसड्यूसर. ठीक है, वो तो हमें चाहिए नहीं. तो इसलिए हमें लोडिंग इफेक्ट को हमेशा मिनिमाइज, मीन्स लोडिंग इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, इन एन आइडियल ट्रांसड्यूसर देयर इज नो लोडिंग इफेक्ट. ठीक है, नो लोडिंग इफेक्ट ऑन द इनपुट क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय द ट्रांसड्यूसर. ठीक है, एक आइडियल ट्रांसड्यूसर की बात करें तो उसमें कोई भी लोडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए. इनपुट क्वांटिटी जो हम मेज़र कर रहे हैं उस पर लोडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए, इसको मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे कि लोडिंग इफेक्ट अगर होगा तो हमारा अगर इनपुट साइड में लोडिंग इफेक्ट है तो ये आउटपुट को अफेक्ट करेगा, और अगर आउटपुट हमारा डेविएट हुआ दैट विल क्रिएट सम एरर. ओके, in form of or scale error or zero error, we will describe it later. okay, कि कौन कौन सी एरर हमारी होती है, टाइप्स ऑफ एरर हम पढ़ेंगे. तो इसलिए मैं यही कह रही हूँ कि आपका लोडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, इनपुट साइड में लोडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए. ओके, हाउएवर प्रैक्टिकल इट मे बी नॉट पॉसिबल. दिस इज पॉसिबल इन आइडियल केस ओनली. ओके, ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा ज़ीरो लोडिंग इफेक्ट हो. तो प्रैक्टिकली क्या होता है, इन प्रैक्टिकली इट मे बी नॉट पॉसिबल. द मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग इफेक्ट इज expressed in terms of force, power or energy obtained from the input quantity. ठीक है, बट प्रैक्टिकली होता क्या है, प्रैक्टिकली हमारा जो हम इनपुट साइड में इनपुट क्वांटिटी जो होती है, ठीक है, लोडिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ, ये किस टर्म में एक्सप्रेस होता है, फोर्स, पावर और एनर्जी. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, फोर्स को हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, तो जैसे फोर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा तो हमारा जो फोर्स है वो इनपुट क्वांटिटी जो है अगर लोडिंग इफेक्ट है तो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा, तो उससे हमारा आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो इफेक्ट होगा, वो कम मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए ये फोर्स वो इनपुट क्वांटिटी में कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, पावर हो सकता है, एनर्जी हो सकता है. तो इस तरीके से लोडिंग इफेक्ट होने की वजह से हमारा जो आउटपुट होता है वो थोड़ा लेस मिलता है. ठीक है, सो दिस इज लोडिंग इफेक्ट. नेक्स्ट इज योर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी पढ़ी थी, पहली आपकी हो गई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने 3 पढ़ा था, टाइप एंड ऑपरेटिंग रेंज. ठीक, सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, लोडिंग इफेक्ट. ठीक है, लोडिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था. तो ठीक, तो आपका ये हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. अब बात करते हैं हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स की. ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड है, ट्रांसफ़र फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंसिटिविटी,
और ये आपका एरर, ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन बेसिकली हमारा क्या होता है, ये 3 टर्म में डिवाइड किया, एक ट्रांसफ़र फंक्शन, सेंसिटिविटी और एरर, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। द ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व 3 सेपरेट एलिमेंट्स, ठीक। फर्स्ट हमारा इनपुट हो गया, सेकंड हो गया ट्रांसफ़र फंक्शन, ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स हो गया। ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन पढ़ रहे हैं, सेंसिटिविटी पढ़ रहे हैं, एरर पढ़ रहे हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन बेसिकली सबको पता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट क्वांटिटी and the output quantity, okay, input and output, and described the input and output behavior of the system, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन की बात करें तो ये रिलेशनशिप आपका होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, क्या रिलेशनशिप है, दैट विल शो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो कोई आपका ये जी, ट्रांसफ़र फंक्शन को जी से डिनोट कर दिए हैं, इनपुट क्वांटिटी आपकी क्यू आई से डिनोट किए हैं, आउटपुट को हम क्यू नॉट से डिनोट किए हैं, ठीक है। तो हम ट्रांसफ़र फंक्शन की बात करें तो ट्रांसफ़र फंक्शन आपका हो जाएगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू आई, ठीक है। तो दिस इज़ योर ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन को अगर बात करें तो ये हमने यही तो पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट क्वांटिटी टू द इनपुट क्वांटिटी, ठीक है। हमारे आउटपुट और इनपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप ड्रॉ हो रही है, दैट इज़ नोन एज योर ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्यू नॉट आउटपुट की बात करें तो आउटपुट आपका हो जाएगा जी टाइम्स इंटू क्यू आई, ठीक है। तो आउटपुट जो मिलेगा आपका ट्रांसफ़र इनटू इनपुट क्वांटिटी, ठीक है, वेयर क्यू नॉट एंड क्यू आई आर द रेस्पेक्टिवली आउटपुट एंड इनपुट ऑफ द ट्रांसड्यूसर, ओके। सो दिस थिंग्स आर क्लियर। आपका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, हमें ट्रांसड्यूसर को डिज़ाइन करते समय ट्रांसफ़र फंक्शन हमेशा डिफाइंड होना चाहिए और ट्रांसफ़र फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। मींस हमारा इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए टू फॉर डिज़ाइनिंग एनी ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट इज़ योर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो पहले हमने ट्रांसफ़र फंक्शन पढ़ लिया, क्या होता है ट्रांसफ़र फंक्शन आपका हो गया था आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आउटपुट मिल गया था जी इंटू क्यू आई, ठीक है। अब जो दूसरा ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है, दूसरा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है, द सेंसिटिविटी इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट क्वांटिटी ओवर द चेंज इन द इनपुट क्वांटिटी, ठीक है। तो दूसरा हमारा हो गया सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी आपका क्या हो गया, चेंज इन आउटपुट क्वांटिटी, डी कर दो, डी ओवर डी क्यू आई, ठीक है। डिफरेंशियल ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ इनपुट। तो हम सेंसिटिविटी की बात कर रहे थे, तो सेंसिटिविटी क्या होता है, बेसिकली द सेंसिटिविटी ऑफ ए ट्रांसड्यूसर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट। आपका डी क्यू क्या होगा, डी क्यू आपका हो जाएगा चेंज इन आउटपुट, ओके। और डी क्यू आई क्या हो गया, चेंज इन इनपुट, ठीक है। तो हमारा जो सेंसिटिविटी का पार्ट था वो हमने देखा, सेंसिटिविटी बेसिकली क्या होती है, ये बेसिकली हमारे आउटपुट के चेंज और इनपुट के चेंज को शो करता है, ठीक है। तो अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन इनपुट, ठीक है। तो सेंसिटिविटी हमारी क्या हो गई, चेंज इन आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट क्वांटिटी, ओके। तो दिस इज योर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट एरर, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स के जो तीसरा पोर्शन है दैट इज़ योर एरर, ठीक है। एरर क्या होता है, एरर मैंने आपको बताया, मेनी टाइम्स द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप गिवन बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू जी क्यू आई इज़ नॉट फॉलोड बाय द ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये हमारा क्या था बेसिकली, यही तो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन का रिलेशनशिप था ना, कि आउटपुट क्वांटिटी जो होगा वो ट्रांसफ़र फंक्शन इनटू मल्टीप्लाइड बाय इनपुट क्वांटिटी, ठीक है। आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा वो
हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में इनपुट क्वांटिटी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन का रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो एरर क्या होती है, इस रिलेशन को हमें ट्रांसड्यूसर में मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए। बट एरर जब आता है तो एरर क्या करता है, इस रिलेशन को वो फॉलो नहीं करता है, मीन्स हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट नहीं मिलता है, मीन्स आवर आउटपुट विल बी डेविएटेड विथ सम क्वांटिटी। इन सच केसेस एरर इज ऑब्टेन्ड इन द ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप फॉलो नहीं होगा तो एरर डेफिनेटली एरर होगी, ठीक है। लेट ए पर्टिकुलर इनपुट क्यू आई, आइडियली द आउटपुट विल बी क्यू नॉट, बट प्रैक्टिकली एन आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, देन द एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज E is equal to Q naught dash minus QI. So this is your error. ओके तो हमने आज किन किन चीज़ों पे बात किया, लेट्स समराइज द होल लेक्चर, और ये इस पोर्शन को मैं डिटेल में कवर करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ए ट्रांसड्यूसर, व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल इन्फ्लुएंस द ट्रांसड्यूसर डिज़ाइनिंग पार्ट, ठीक है। एंड फर्दर वी आर सी, हमने क्या क्या देखा, दैट इज़ योर ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली क्या क्या ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स मीन्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स में हमने देखा आपका कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दैट शुड बी नोन, ठीक है। तो दीज आर योर करेक्टरिस्टिक्स, 3 टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हमने देखा, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसमें से हमने इनपुट करेक्टरिस्टिक्स वी हैव कवर्ड एंड ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स is also covered in this lecture. Further for the next lecture, output characteristics, we will talking about the output characteristics. Thank you class.